Ram Ram everyone. Welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Let's welcome Shiv Kumar ji to give us a discourse on Bhagavad Geeta based on Swami Ramanand teachings. Welcome Bhaiya and thank you all for joining us today. Shri Ram Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah. Ram Ram to you all joining this session. We are at chapter number 4 Shrimad Bhagwat Geeta, that is selfless karma. Verse 18, श्लोक संख्या 18. कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत. कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्म यह पश्येत इन ऑल एक्शंस. कर्मणि अकर्म यह पश्येत, whoever sees in actions. So in all actions, whoever sees in actions, जो सभी कर्म में अकर्म देखता है. अकर्मणि च कर्म यह, and in all inaction, who sees actions. सबुद्धिमान मनुष्येषु, that is buddhiman, wise amongst all humans. Sa buddhiman manusheshu, that person is wise among all humans. Sah yukta kratsna akarma krat, that is yogi yukta kritsna karma krat, and is performer of all kind of actions. So the literal meaning of this is he who finds in actions in action. Karmani akarma yah pashet, that who finds in actions and actions in inactions. He is wise one among men and engaged in yoga and is performer of all actions. जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और सभी कर्मों को ठीक दृष्टि से करने वाला है. Now let us see what is the meaning of this. This is tongue twisting language is there. This shloka is verse is tongue twisting. However, it has deep meaning. That कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्म देखता हो, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, कर्मों में अकर्म देखता हो. What does it mean? There are three categories of karma. One is akarma, that is another is karma, and third one is vikarma. So what does it mean by akarma? When we do work without its any traces, जब हम बिना संस्कारों के निर्माण किए हुए जो कार्य करते हैं वे अकर्म कहलाते हैं और वे श्रेष्ठ पादान पर आते हैं. उनकी कैटेगरी सबसे ऊंची है. The person who is doing work without any kind of trace of it, that is a kind of akarma, and that is the best category of it. That is the actions done by saints. The second one is karma. When we do karma and we do it with desires, हम कामनाओं के वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो वे कर्म की श्रेणी में आते हैं. And the third one is vikarma. Vikarma means when we simply sit thinking that I will not do it, I will not do any work and it will not make any trace or some scar, then it is completely forbidden. This is not advised by Lord Krishna, and that comes under vikarma.
हम अगर कर्म इस दृष्टि से न करें कि हमें ये संस्कार बना दें और चुपचाप बैठ जाएं, तो ये विकर्म है और भगवान कृष्ण ने इसे अच्छा नहीं बताया है। तो यहां पर ये बात कही गई है, अर्जुन भी कुछ कुछ वैसा ही कर रहा था। Arjuna was saying that I will not fight this religious war because it will not make any sanskar. However, in their mind, there are several ambiguities are running. No, I will escape from this. I will go this, and there are so many conflicts. A kind of war is going on in mind of Arjuna. So Lord Krishna is saying, what is uh, there the use of abandoning your physical work when your mind is completely indulged in such kind of religious war? You cannot be spared, and you are continually making some scar or traces of it, and this is a kind of vikalp. Now here Lord Krishna says, karmani akarmaya pashet, whatever work we do, it is all performed by the energy of God, because the God's energy is manifested in this complete physical world, in this Maya, in this nature, in Prakriti. Only God's energy is proliferating. तो भगवान की ऊर्जा, भगवान की शक्ति प्रकृति में निहित है, और ये प्रकृति संचालित हो रही है, और माया के वशीभूत होकर हम ये देख नहीं पाते कि ये भगवान कर रहे हैं. अदरवाइज एवरीथिंग वॉट एवर इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, it is by the grace of God. And the person who sees that yes, these things are getting performed, all actions done by us, it cannot be performed by us. It is the energy, the divine power, the soul, which is the spark of super soul, that is doing by the grace of that super soul. जो कर्म में अकर्म देखता है, जो ये देखता है कि हमारे द्वारा किए गए, निष्पादित किए हुए सभी कार्य परमात्मा ही तो करा रहे हैं, इसलिए वो उनके कर्म के बंधन में भी नहीं बनता कि मैंने किए हैं, और जब कर्म के बंधन में ही नहीं बंधेगा तो फल के बंधन में कैसे बंधेगा? तो उसके मन में विचार की गुत्थी सुलझ जाती है, विचार के ताने बाने नहीं चलते, और विचारहीन होकर, निर्विचार होकर वो कर्म करता रहता है। भगवान के लिए यज्ञ स्वरूपा उस प्रभु के लिए, इस प्रकृति के लिए वो यज्ञ करता रहता है, भगवान को ही अर्पित कर देता है। तो जो कर्म में अकर्म देखता हो कि वॉट एवर एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अस, आइदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज विच इज गोइंग ऑन विद इन अवर बॉडी, जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय संबंधी अभिक्रियाएं ही क्यों ना हो, शरीर के अंदर बहुत कुछ होता है, सांस ली जाती है, खून का संचार होता है, खाने का पाचन होता है, और न जाने कितनी क्रियाएं अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो ये समझता है कि ये हम नहीं कर रहे हैं, हम तो कर्म किए बिना रह भी नहीं सकते, जीवन निर्वाह हो भी नहीं सकता, जीवन भी ना होगा अगर कर्म ना होगा, तो शरीर के अंदर होने वाले सभी कर्म अकर्म की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनके बारे में तो हम कभी सोचते नहीं और संस्कार भी नहीं बनाते। हम क्लेम भी नहीं करते कि सांस मेरे द्वारा ली जा रही है, खून मेरे द्वारा दौड़ाया जा रहा है, तो हम संस्कार क्यों बनाएंगे, और इसका मुझे भगवान फल दो, क्योंकि हमने खून दौड़ाया है और सांस ली है, और इसी तरीके से अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनको चलाया है, तो अब फल दो। जब हम ये सोचते हैं ये कार्य ही हम नहीं कर रहे हैं, तो फल किस बात का? उसी प्रकार से जब शरीर भगवान की शक्ति से चल रहा है, तो शरीर के द्वारा होने वाले कार्य भी उसी की शक्ति से चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो सम्यक दृष्टि रखता है, जो साक्षी भाव रखता है, who is mere spectator while doing the work, that it is all done by God and it is not we or having any power to do it. So why to get connected to the karma, or why to get connected to actions, and why to get attached to the fruit of actions, why to see forward for the fruit of actions? Then that person is doing a karma, and it is the best category of karma. Now
When Arjun suggested that he wishes to shy away from his duties of fighting the war, Shri Krishna explained to him that it would be a sin and it would go to the hellish regions for such inactions. So that was not recommended by Lord Krishna. Then कर्मणि अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह अकर्म में कर्म देखता हो. Whatever actions are getting performed in nature, either inside our body or outside our body, then the person is saying, yes, these plants are growing. Yes, somebody is doing proliferating in them, and that's why these are growing. अकर्म में कर्म देखता हो, ये भगवान करने वाला है. जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, पहाड़ धीरे धीरे कट के मिट्टी बन रहे हैं, मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ बन रही है, उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अपना सर्वश्रेष्ठ दान करके पेड़ बन रही है, पेड़ अपना सर्वश्रेष्ठ फल दान करके बकरी के अंदर जा रहा है, बकरी अपने शरीर की आहुति देकर शेर बन रही है, और इस प्रकार से ऊंचे पादानों में दैट इज विकास की अवधारणा को देखता है. द पर्सन हु इज सीइंग दैट द world, the physical world is at every moment transforming, and it is transforming, it is kinetic, it is movable, that electrons are moving around nucleus. It is not motionless, everywhere something is going on, and that the God is sitting inside it and doing it. The person who is seeing that Ano Raniyan Mahito Mahiyan, that God is smaller than the smallest atom and the greatest than the meta world. The person who is seeing like this, कि वो बड़े से भी बड़ा है, महतो महियान, अणु अणियान और अणु से भी छोटा है, वह सही देखता है. और वो देखता है कि जो अकर्म हो रहे हैं, चाहे हमारे भीतर हो रहे हैं, चाहे हमारे बाहर हो रहे हैं, उनको करने वाला तो परमात्मा ही है. तो वो सम्यक दृष्टि रखता है, जो कर्म में अकर्म देखता. कर्म हमारे द्वारा नहीं हो रहे हैं, ये अकर्म है. जो देख लेता है ठीक ठीक दृष्टि रखकर कि परमात्मा करा रहा है, सूत्रे मणिगणाई, वही सब में बैठा हुआ इन सभी कर्मों का सूत्रधार है, वो सही देखता है. और जो अकर्म में, जिन पर लोगों की दृष्टि भी नहीं जाती, whoever thinks that these plants are why growing, whoever thinks that why we are having so many at various level biochemical activities, then that person who sees it properly and sees that it is done by God, sees correctly. तन्हा किसी को बज़्म में समझो न तुम अमीर, सब अपने अपने साथ हैं लश्कर लिए हुए. There are millions, billions, trillions and zillions of atoms, cells within us, and within each cell there are lot of biochemical activities are going on. अगर हम अंदर को देखने जाएं तो न जाने कितना कुछ हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है. ये इतनी भली प्रकार से हो रहा है. अगर जरा सी खटपट और कुछ भी हो जाए तो हम उस समय सोचने की भी क्षमता ना रखें, क्योंकि शरीर में कुछ हो तो आदमी सोच भी ना पाए. लेकिन इतने आराम से हो रहा है कि हम अपने मानसिक उड़ाने भरते हैं, तो क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कहीं कोई शोर शराबा तक नहीं. Now, next verse is 4.19. यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहु पंडितम बुधा. यस्य सर्वे समारंभा, whose all undertakings काम संकल्प वर्जिता are free from resolution, that is devoid of resolution for any desire of material pleasure. So the person who is free from kam sankalp varjita, the person who is free from sankalp, I will do it, I will complete it, let me do it for getting that, that is kamna, to have some desire. We are having certain desire,
दैट इज कामना कर्म का मूल होती है सामान्य मनुष्यों के लिए। संतों के लिए तो संत कर्म करता है भगवान के लिए, उसके लिए किसी कामना की आवश्यकता नहीं है। पर हमारे आपके लिए कामना मूल है, कामना जड़ है। मूल का मतलब जड़ है, रूट है, और उसी से वृक्ष, कर्म रूपी वृक्ष उदित होता है, और फिर उसमें फल लगते हैं। वो फल हम पाना चाहते हैं, तो कामना पेड़ पेड़ पहला पैदा करेगी। पेड़ जब बढ़ेगा तो फिर उसमें जो फल लगेंगे वो कामना से सीधा कनेक्ट होते हैं। देखो, हमने कामना की तो फल पाए, और वे वो हमारे शरीर से खाद पानी लिया करती है। तो कामना हमारे शरीर का धीरे धीरे निचोड़ती रहती है, उसमें से सबसे अच्छे अवयव, सारे अच्छे तत्व, और हमारे ये जो जीवन काल उसको लेती रहती है, हमारे जीवन को खपा लेती है कुछ फल पाने के लिए, वे फल जो क्षण भंगुर हैं। सो यस्य सर्वे समारंभा, whose all undertakings are devoid of any resolution to desire for material pleasure, जिसके सभी कर्म के समारंभ कामना से भी वर्जित हैं, कामना से भी रहित हैं, और संकल्प से भी रहित हैं। संकल्प नहीं है उसके मन में, कोई पंचवर्षीय या 10 वर्षीय योजना लेकर इस धरती पे नहीं आया है कि ये कर लूंगा फिर उसके बाद वो कर लूंगा। वो तो भगवान के लिए जी रहा है। सो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, whose all actions are burnt in the knowledge, divine knowledge of fire. Gyan Agni, so that is divine knowledge can completely burn, in even ashes are not remain। जिसके काम सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हैं, कुछ भी शेष नहीं रह जाता, कुछ भी संस्कार भी शेष नहीं रह जाता। तम आहु, दैट कैन बी एड्रेस्ड, तम आहु दैट कैन बी एड्रेस्ड, कहा जा सकता है। पंडितम बुधा, सो दोज हु आर वाइज एड्रेस देम एज ए सेज, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे उसको सेज, वही उसे उसे वे लोग संत कहते हैं, जो काम और संकल्प से रहित होकर कर्म करता है, और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं, वही पंडित है। दैट पर्सन इज सेज हु इज वर्किंग, whose all actions are free from desires, free from ultimate, that is free from any material goal or physical goal. That person is sage. The literal meaning of this is the wise call him learned, whose actions are free from desires and thoughts, whose actions have been burnt away by the fire of wisdom. The soul being a tiny part of God, who is ocean of bliss, we are not having any lack of blissness. That is, God is constantly pouring the gratitude on us, the passion on us. So God is there. The God is pouring within us the grace. It is we which are not accepting or receiving it properly, or we have forgotten that who we are. We are the spark of that soul. So we should generate the capacity. There is no lagging of time from the side of God. It is the lagging of from our side. So we should prepare for it. We should surrender ourselves to God to receive that grace, to receive that gratitude. The soul being tiny part of God and who is having infinite bliss, we are covered with material energy. देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुस्तर है। ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकती, ये कठिन है इसे समझना। देवी ही ऐसा गुणमय। सिमिलरली वी आर कवर्ड विद material energy, with the material body. In this ignorance we perform actions to attain bliss from the world of matter, so that we can get bliss from them, we can get few praise of words from them. However, the
actual fact is that we cannot take an extra breath after the last breath. This is our capacity. So, but we are claiming that this building is, we are claiming this building has been made by one. See how my childs are performing. They have gone to that post, and see, this has been done by us. This has been done. However, the reality is that we cannot take the extra breath after the last breath. So we should realize this, and we should surrender or offer our work, offer our actions. This is the actuality, but we are not knowing. We should offer it to the feet of God, so that our all the actions become inactions. एक्शंस इज ऑल्सो, जैसा कि बताया गया कि अकर्म, कर्म और विकर्म, कर्म भी हमें आगे ले जाते हैं। अगर हम अकर्म की दृष्टि से कर्म न कर सकें तो कर्म ही करते रहें। उसमें ट्रायल एंड इरर मेथड के द्वारा धीरे धीरे जब हमको ठोकर लगती है तो धीरे धीरे हम और कर्म करते हैं। फिर धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि ये संसार एक न रहने वाली चीज है। आगम अपाइनो अनित्या, ये न रहने, आने और जाने वाले हैं। इसलिए हमें परम धाम आनंद घन भगवान के चरणों में ही अपने को समर्पित कर देना चाहिए। धीरे धीरे कर्म भी हमें आगे ले जाता है। विकर्म नहीं करना चाहिए कि कर्म ही छोड़ दें। कर्म छोड़ने से तो सड़ांध पैदा हो जाती है, जीवन रुक जाता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्म किया, एक सारथी बने, और जो जो उनको करना था वो सब कुछ किया, जबकि वो तो त्रिगुण रहता है। सो दैट ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द एट्रीब्यूट्स, but Lord Krishna himself has performed the actions. So it is for to teach us that we should always indulge the work. If Arjun, though Arjun was a great human and can be devoid of any desire and resolution, but if that Arjun cannot do so, then also he should indulge in work. That is second category. यदि वो काम संकल्प से रहित होकर युद्ध नहीं कर सकता तो काम से युद्ध होकर काम से युक्त होकर युद्ध करे, राज्य के लिए युद्ध करे। सबसे उत्तम तो ये होता कि वो ये सोचता ये भगवान का सब कुछ है तो मुझे युद्ध करना है, भगवान हमसे प्रेरणा करके युद्ध करा रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं कर सकता तो राज्य की कामना के लिए युद्ध करे, धरती के सुखों को भोगने के लिए युद्ध करे, पर युद्ध करे। विकर्म से कम अच्छा कर्म है, अकर्म से कम अच्छा कर्म है, लेकिन कर्म से भी बहुत गया गुजरा विकर्म है। सो वी शुड नॉट फॉल प्रे टू विकर्म, वी शुड डू वर्क आइदर अंडर इनएक्शंस और एक्शंस। हमें या तो अकर्म करना चाहिए या कर्म। हम कर्म करते करते अकर्म की श्रेणी में खुद पहुंच जाते हैं। वी ऑल आर एट लोअर लेवल, सो कैन नॉट डायरेक्टली रीच टू दैट स्टेज ऑफ सेज। Ultimately we will achieve it, but we continue to do work and practice it, that these all works are done by God, and this is the actual, though we may not be knowing due to Maya. So if we are thinking so, then by God's grace ultimately we will manage to realize, yes, these works are done by God, and we were thinking of this that it is done by me. हाउ फुलिश वी आर। हम बाद में ये महसूस कर लेंगे तो भगवान ही कर रहा था, और हम कैसे मूर्ख थे कि हम इसे अपने से द्वारा होते हुए समझ रहे थे। वी आर टाइनी पार्टिकल्स इन दिस क्रिएशन ऑफ गॉड। सो इन कंट्रास्ट, सो द यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, दैट इज द श्लोक। So, in contrast, when soul is illuminated with divine knowledge, it realizes that bliss it seeks will be attained not from objects, and it can be attained by the loving service of God. भावना से भगवान की सेवा की जाए, जो कर्म है वही सेवा। So, it is the bliss can be attained from God and not from these ephemeral objects. So, it is only for interactions and for complete transformation of these satoguna, rajoguna and tamoguna, and freeing us from these gunas. So it is only our karma and it proper outlook. If we do karma actions,
then they can free us. So these are having so magical power. God has provided us freedom for doing work. ईश्वर ने हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और कर्म करने में हमारा नजरिया कैसा है, it is more important. If you are driving a car with high speed, or you are driving a car with correct speed, in correct lane, and adopting all proper procedure, and somebody comes in front of car and accidentally dies, then the rules of law or the court sees either it is culpable homicide or it is unintentionally the person is died. क्या तुमने उसे जानबूझकर उस हत्या को अंजाम दिया है, ये कोर्ट देखता है, या फिर तुम्हारे बिना किसी इंटेंशन के वो मर गया। तो यदि हमारे भावना अधिक महत्वपूर्ण है, संसार में भी कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, भावना देखी जाती है। कि कई बार हम चलते हैं, हमसे हमारे मित्रों को धक्का लग जाता है, वो एक नजर मिलाता है, हाँ ये धक्का इसने गलती से लगाया है, वो भी मुस्कुरा के चल देता है। भावना अधिक महत्वपूर्ण है, और अगर रोष में हल्का सा भी किसी को कुछ कर देते हैं तो केस बन जाता है। तो कोर्ट देखता है कि यदि तुमने उसे मार दिया है लेकिन तुम्हारी भावना मारने की नहीं थी, तो तुम फ्री हो, और यदि तुमने चेष्टा की है, कल्पीबल होमिसाइड है, तो ऐसे केस में तुमने इंटेंशनली मारा है, तो तुम्हारे न मारने पर भी यदि तुम उस षड्यंत्र में शामिल हो तो तुम्हें उसकी सजा हो जाती है। द सिमिलर मैनर द लॉर्ड कृष्णा इज एम्फेसाइजिंग अर्जुना, दिस इज वेस्ट, your mind is running with those thoughts of the war and you are leaving it physically, it is sinful. So when soul is illuminated with divine knowledge, it realizes that the bliss it seeks will be attained not from the objects but in loving service of God. It then strives to perform every action for the pleasure of God. Now, next verse is त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः. So verse is 4.20. त्यक्त्वा कर्म फल asangam. So the person who has given up karma phal asangam, attachment to fruits of action, nitya trapto, ever satiated, contented, the person who is ever contented, nirashraya, not taking the shrine of anything or not taking dependence of anybody, nirashraya. Karmani abhipravattopi, the person if performs some actions, if that person has intention or intended to do some actions, nev kinchit karoti sa, that person though performs actions, nev kinchit karoti sa, वो करते हुए भी कुछ नहीं करता। जो संत पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक निराश्रय है, किसी के आश्रित नहीं है, किसी पर भरोसेमंद नहीं, एक भरोसो एक बल आत्म एक आधार, जो नहीं पकड़ो बाह तो कौन लगावे, निराश्रय, ही इज नॉट टेकिंग द शेल्टर और डिपेंडेंस ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट, दैट पर्सन ओनली सीक्स और सरेंडर्स और सर्विसेज फॉर गॉड, टेक्स द शेल्टर ऑफ गॉड. Nitya trapto, always contented, because atmanyevatmana tushta, his soul is satisfied within itself, because the soul is not devoid of anything, it is fulfilled. That is anuchit, anusat and anuanand, that atman itself is having the core of happiness. Then for what it will be not contented, or what desire the soul may have. नित्य तृप्तो, जो नित्य तृप्त है, जब आत्मा में निवास करेगा तो तृप्त ही होगा. त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया, जिसने
कर्म के संग को त्याग दिया है, नित्य तप्तो स्वयं में संतुष्ट है, किसी के प्रति आशावान नहीं है, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि कर्म में प्रवृत्त होने पर भी नैव किंचित करोति सह न इव नॉट सर्टनली, निश्चित रूप से करने पर भी कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि न इव किंचित करोति सा, कुछ भी नहीं करता, करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता. Now the literal meaning is having given up attachment to result of action. He who is ever contented, dependent on nothing, he really does not do anything, even though engaged in action. That person is purely instrumental. Like bulb is enlightening the room, lightening the room by the energy of electricity. And bulb has never claimed that it has only lightening the room. If light does not goes to bulb or it is not supplied to bulb, then bulb cannot on its own lighten the room. तो ये एक बिजली की जो आवेश की ऊर्जा के कारण बल्ब जलता है. यदि बिजली ही ना हो तो बल्ब ना जले, तो बल्ब कभी क्लेम नहीं करता. उसी प्रकार से एक साधक जो आशा से रहित है, किसी के प्रति आशा नहीं करता और स्वयं में संतुष्ट है, कर्मों की फल की आसक्ति से रहित है, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करता. Actions cannot be classified by external appearance. It is the state of mind that determines what is inactions and what is actions. Actions are further classified that either जो हम कर्म, तो तीन तरीके के कर्म आपको बताए गए हैं, जैसा कि बताया कि अकर्म, कर्म और विकर्म. In general, majority of population is indulged in karma. Sages are at the stages of, that is akarma, and there are, it is the tendency of tamasic person, that is the person having the mode of ignorance. They may be lethargic and having a tendency not to do work, though they may not be thinking it as that it will not make any taste. But if we are quitting the actions so that it will not make any taste, then it is weaker. Now, so being fully satisfied in devotional union with him, they look upon God as, they take only refuge to God. In this state of mind, all actions are termed as a karma. When we do it, karma brahmarpanayo, when we do it for the sake of God, then it will not make any trace, as in last verse it has been said, Gyan Agni Dagdha Karmanam, that all the actions are completely burned in the fire of knowledge. Now let me recite bhajan. Shri Ram, Ram ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योत तुम्हारी. राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योत तुम्हारी. कृपा याचक खड़ा दुआरे, भिक्षा दे मेरे राम पियारे. कृपा याचक खड़ा दुआरे, भिक्षा दो मेरे राम पियारे. गूंजे तान तुम्हारी राम ऐसी करो कृपा,
मन में जग जाए ज्योत तुम्हारी। मोह माया का मिटे अंधेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। मोह माया का मिटे अंधेरा, यह जीवन हो जाए तेरा। करो भीतर उजियारी, राम ऐसी करो कृपा। मन में जग जाए ज्योत तुम्हारी। भव सागर में डूबी नैया, तेरे बिना प्रभु कौन खेवैया। भव सागर में डूबी नैया, तेरे बिना प्रभु कौन खेवैया। जो पार उतारी, राम ऐसी करो कृपा। मन में जग जाए ज्योत तुम्हारी। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द। नतमदिष्टं नतमदिष्टं नतमदिष्टं। पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम। कुमार बेटा, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कर्म, अकर्म और विकर्म का सुंदर विश्लेषण किया, और उदाहरण भी कितना अच्छा है जो कि हम जीवित विश्वास कर सकें। हमारी बॉडी पूरी काम कर रही है? हम लोग अन्न खाते हैं और उसके बाद पूरा सब कुछ हो जाता है, उसको नहीं कहते कि हम कर रहे हैं। यदि ताकत हो तो उसको कह के बताओ कि हम कर रहे हैं। नहीं है ताकत। बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया। और एक बात और भी बहुत अच्छी बताई कि हम, ये नहीं है कि हम अकर्म हो जाएंगे तो हम कर्म करें ही ना, कर्म करते करते हम अकर्म होते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमें कुछ छोड़ना नहीं है कि नहीं हम तो ये करेंगे ही नहीं ना, करते जाएं। और विकर्म के बारे में जब दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो विकर्म अपने आप हटते जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम परीक्षा नहीं देंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे। अगर बच्चा कह दे कि क्योंकि हम फेल हो जाएंगे तो हम अब परीक्षा ही ना दें, तो ये विकर्म है। बहुत सुंदर। परीक्षा देनी है तो सफल हो, हम कभी ना कभी सफल भी हो जाएंगे। जब कदम ही नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा मियाँ जी कितने पानी में है ना। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिया बहन, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सेवा करते हैं। गीता बहन, कुसुम सिंह बहन, सबको राम राम। विजय जी राम राम। राम राम प्रिया बहन, राम राम। Ram aunty, Ram sir. Thank you Priya for the wonderful session again, and thank you all for joining us today. Ram everyone. आप श्री गीता में बोलते हैं भैया, बहुत सुंदर। राम राम भैया। राम राम राम।